بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قبر سے سیدھا جہنم میں جانے والی عورتوں کے 6 گناہ کون سے ہیں؟ 6 عادتیں عورت کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے کر جائے گی۔ یہ 6 بری عادتیں اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرہ تارا ہے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کو کس چیز نے رلا دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں معراج کی رات شب اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا ہے، اور ان کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ اتنا شدید اور ہولناک عذاب ہے کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وہ ذیانت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس طرح کے عذاب میں مبتلا دیکھا ہے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ کی ہڈیاں کی طرح پک رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو خود جہنم کے اندر ہونا بذات خود کتنا ہولناک عذاب ہے، پھر بالوں کے بال لٹکنا یہ اتنا تکلیف دہ عذاب ہے، اس کے بعد پھر دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ چوتھی عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ پھر پانچویں عورت کو اسی حالات میں دیکھا کہ اس کا چہرہ غزرہ اور خوندار چہرے کی طرح اور اس کا باقی جسم گدھے کی طرح ہے۔ پھر حقیقت میں عورت ہے اور سانپ اور بچھو اس کو لپیٹے ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی عورت کو دیکھا، اس کی حالت دیکھی کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے سے آگ نکل رہی ہے اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے گزرگاہ اس کو مار رہے ہیں۔ پھر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون لوگ اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہوگا؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا اور اس کو یہ عذاب گھر سے ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا، اور عورت نامحرم مردوں سے اپنے بال نہیں چھپاتی تھی،
दूसरी औरत जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो ज़बान के बाल जहन्नम में लटकी हुई है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो औरत है जो अपनी ज़बान दराजी से अपने शोहर को तकलीफ़ पहुँचाती थी। फिर औरतों में बलाशा ये बुरी खसलत पाई जाती है कि वो ही मुँह फट, ज़बान दराज, बदगुआ और बहुत ज़्यादा ज़बान चलाकर अपने शोहर को तकलीफ़ पहुँचाने की आदत होती है। और ये बात मर्द के लिए भी जायज़ नहीं कि वो अपनी ज़बान से अपनी बीवी को नाहक तकलीफ़ पहुँचाए, इसको सताए, परेशान करे। मर्द के लिए ये बात बास अज़ाब और अज़ाब से बासत बला है। लेकिन हदीस में ये सफ़ा ख़ास औरतों के मुतल्लिक़ बयान की जा रही है कि बात बात पर शोहर से लड़ना, बदतमीज़ी करना, ऐसी बात करना कि जिससे शोहर का दिल दुखी, ऐसी ख़वातीन के बारे में ये अज़ाब बताए गए हैं। इन्हें जहन्नम में ज़बान से लटकाया जाएगा। तीसरी औरत जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अपनी छाती के बाल लटकी हुई है, इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो औरत है जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे मर्दों से नाजायज़ ताल्लुकात रखती थी। इस हदीस शरीफ में बेहया औरतों को इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इनके कौन कौन से गुनाह हैं। इसी तरह शरीफ और बाहया मर्द भी इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकते। चौथी औरत जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि इसके दोनों पाँव सीने से बंधे हुए हैं, इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो औरत जो दुनिया में जज्बात और हैज़ से पाक साफ़ रहने का एतमाद नहीं करती थी, नमाज के साथ बड़ी लापरवाही करती थी, बल्कि मजाक का मामला करती थी। पांचवी खातून जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि इसका चेहरा खीज़ा और बहुत ज़ख्मी और इसका बाकी जिस्म गधे की तरह सांप बिच्छू इसको लपेटे हुए, इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो औरत थी जिसको झूठ बोलना, चुगली खाने की वजह से अजाब हो रहा था। ये गुनाह सिर्फ औरत के लिए साथ ख़ास नहीं, बल्कि अगर मर्दों के अंदर भी ये गुनाह फराख पाए जाएं तो इसकी भी पकड़ होगी, इन पर भी अजाब होगा। छठी औरत जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हाल में देखा कि वो कुत्ते की शक्ल में है, इसके मुंह में आग दाखिल हो रही है और पखाने के रास्ते से आग बाहर निकल रही है, फरिश्ते जहन्नम से गुजार रहे हैं, इसको मार रहे हैं। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस औरत को ये अजाब दो, गुनाहों की वजह से हो रहा है, इसकी हसद वजह से, दूसरा एहसान जतलाने की वजह से। हज़रत अब्दुल बिन अब्बास रज़ी ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे आग दिखाई गई तो मैंने इस जैसा खौफनाक मंज़र कभी नहीं देखा, और मैंने जहन्नम में अक्सर औरतों की शिकल देखी है। सहाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्यों? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने कुफ्र की वजह से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात पूछी, क्या वो अल्लाह ताला के साथ कुफ्र करती थी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो खामन की नाशुक्री करती थी। आप उनमें से किसी के साथ ज़िंदगी फिर आसान करती थी तो फिर वो आपसे कोई चीज़ देख लेते तो वो कहती थी कि मैंने सारी ज़िंदगी तुमसे कोई खैर नहीं देखी। सही हज़रत सईद बुखारी फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल हिज़ा यानी ईद उल फितर के लिए ईदगाह की तरफ निकले तो औरत
औरतों के पास गुजरे तो फरमाने लगे, ऐ औरतों की जमात, सदका खैरात किया करो, बेशक मुझे दिखाया गया है तुम्हारी जहन्नम में कसीरत। तो कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल वो क्यों? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम तो काली कूच बहुत ज़्यादा गिरती हो, खामन की नाफरमानी करती हो, मैंने दीन और अकल में नाकसाई तुमसे ज़्यादा और किसी को नहीं देखा। तुम में से मैंने कोई एक अच्छे भले शख्स की अकल ख़राब करते देखा। वो कहने लगी, आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमारे दीन और हमारी अकल में दक्सी क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या औरत के बराबर नहीं? वो कहने लगी, क्यों नहीं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी अकल का नुकसान है क्या जब इसको किसी हैज़ आए और नमाज रोज़ा नहीं छोड़ती? तो कहने लगी, क्यों नहीं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके दीन का नुकसान है। तमाम ख़वातीन को हमारी ये नसीहत है कि वो इस्लाम के इशारे और फ़र्ज़ पर अमल करें, ख़ास करके नमाज पढ़ें और इस एशिया से दूर रहें जो कि अल्लाह ताला ने हराम की है, ख़ास करके इस शरीक से जो औरतों के अंदर मुख्तलिफ सूरतें फैलाई हुई हैं, मसलन अल्लाह ताला के अलावा दूसरों से हाजत पूरी करवाना और जादू करवाना, नाजूमियों के पास जाना। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें और हमारे सब बहन भाइयों को आग से दूर रखे, ऐसे कौल और अमल करने की तौफीक दे जो अल्लाह ताला के पसंदीदा हों। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।